Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. Hello everyone, welcome to the World of Divine Vastu on Radio Zingi's live Facebook page. Let me remind you, Radio Zingi can also be listened on WBWD 540 AM in Tri-State New York, New Jersey and Connecticut, WXMC 1310 AM from Parsippany, Central Jersey, 96.7 FM from Edison, New Jersey, and of course Radio Zingi can also be found on apps on iOS, Android, Alexa and live stream on Radio Zingi Tri-State. हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रेवा कुमार from the World of Divine Vastu और ये सारे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड इतने सारे क्लाइंट्स को गाइड करती हैं हमेशा with her expertise. She has been in the world of Divine Vastu from past 37 years plus and she got great knowledge and expertise in the field of Vastu. Not only residential, she helps you and guides you to correct the Vastu defects. Either you own a restaurant or any kind of business like a gas station, or if you are in a corporate world and if you are looking for growth and prosperity, then रेवा जी उसमें भी help करती हैं. तो मैं आपको देना चाहूंगी रेवा जी का नंबर. First of all, अगर आप इस शो को सुनकर if you think that you also need her advice, her guidance, then please connect with her 510-868-3338. That number is 510-868-3338. And if you would like to know more about Vastu principles or about Rewa ji herself, then please visit her website, worldofdivinevastu.com. जय माता दी रेवा जी, कैसी हैं आप? जय माता दी सुनीता और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिस्टर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार. मैं बहुत अच्छी हूँ और आज हमारी सुनीता इज रियली लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ब्राइट कलर्स. और इसी ब्राइट कलर्स में बिल्कुल ऑफ कोर्स जब आप इतने ब्राइट कलर्स में इतने अच्छे लगते हैं, आपकी स्माइल इतनी अच्छी है, तो जो सामने देखने वाला या सुनने वाला आता है उसको भी कहीं पे अगर उसके उदासी हो तो वहां एक अच्छी सी रोशनी मिलती है और वो भी यस पॉजिटिव, बिल्कुल. और यही पॉजिटिव वाइब्स है क्या, दैट्स द मैग्नेटिक एनर्जी. इट अट्रैक्ट्स पॉजिटिवली और नेगेटिवली. दीज ऑल आर द मैग्नेटिक रिलेटिव विद द मैग्नेटिक एनर्जी, वो जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है. तो बहुत जरूरी होता है कि एक मुस्कुराहट. वैसे भी मैं कहना चाहूंगी कि दिन भर में अगर आप किसी एक को मुस्कुराहट दे दें, सारे दिन के दिन में किसी एक को मुस्कुराहट दे दें, किसी एक के आंसू पहुंच दें, किसी एक के दुख का सहारा बन जाए, किसी एक की मदद कर दें, तो ये देखिए कि आपका सबसे बड़ा पुण्य का काम है, सबसे बड़ा ये काम है. क्यों? क्योंकि जो आप कर्म करते हैं वो आपके पास लौट कर आते ही आते हैं. तो खास में मैं कल ऐसे ही बैठी हुई थी तो मैं सुन रही थी, किसी ने एक बात चल रही थी, तो स्टोरी भी थी एक तरह से. तो इट वाज, मैं सुनीता जरूर चाहूंगी आज अपने लिसनर्स व्यूअर्स को बताने के लिए कि किसी ने बोला कि समुद्र तो इतना बड़ा है, जैसे गंगा आती है, गंगा से नदी से गंगा बनती है, समुद्र के बीच में समा जाती है. तो बोले समुद्र में कि आप में तो इतनी ताकत है, सब कुछ आपके अंदर आ जाता है. तो मैंने बोला कि नहीं, वो एक भाप बन के ऊपर चला जाता है. जब भाप बनती है वो बादल बनती है, बरसती है, फिर वो वापस आ जाती है. तो ये बहुत छोटे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर चीज घूमकर हमारे पास आती है.
हमेशा जो भी आप जहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से वो सर्कल स्टार्ट करेंगे, हमारा जीवन भी, हमारी लाइफ भी व्यूअर्स एक अर्थ की तरह गोल है। जहां से स्टार्ट करोगे वो घूमकर आएगी आएगी ही सही। तो उसी तरह से अगर आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट देते हैं, आप किसी के दुख का सहारा बनते हैं, किसी की जरूरत में आप उसकी जरूरत पूरे करते हैं, तो याद रखिए कि आपको भगवान देख रहा है, वो आपके कर्मों के साथ वो लिखा जा रहा है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसी पॉजिटिव, इसी मैग्नेटिक एनर्जी के साथ में अपने सारे व्यूअर्स, सभी लिसनर्स का फिर वेलकम करती हूँ सुनीता के साथ में, कि आपकी ही एनर्जी हमारे को आपके साथ जोड़ती है और हम लोग सब एक ही फैमिली की तरह हैं। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, आप सब याद रखें कि अगर आपकी कोई परेशानी है तो आप बेझिझक हमें कॉल करें, हमसे शेयर करें। अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स या स्पिरिचुअली भी आप कह सकते हैं कि द गाइडलाइंस ऑफ लाइफ, मैं जरूर अपने तजुर्बे के साथ में चाहूंगी कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। एंड रिमेंबर ऑलवेज दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप अगर इम्पॉसिबल को डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा? आई एम पॉसिबल। तो ऑलवेज रिमेंबर, आई एम पॉसिबल। जी बिल्कुल रेवा जी, हमने बात करी मुस्कुराहट की, पॉजिटिविटी की, एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। ये शो जो आपके लिए लेकर आते हैं वो इसी पॉजिटिविटी, इसी मुस्कुराहट को बरकरार रखने के लिए लाते हैं, क्योंकि रेवा जी ऐसे बढ़िया टॉपिक्स पे हर हफ्ते डिस्कस करती हैं जिससे हो सकता है कि आप पर्सनली गुजर रहे हो पर किसी से डिस्कस नहीं कर पाए। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही पर्सनल टॉपिक है, बट एट द सेम टाइम इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल टॉपिक। एंड लिसनर्स एंड व्यूअर्स, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप भी इस डिफिकल्ट सिचुएशन से, जो मैं टॉपिक बताऊंगी आपको, उससे गुजर रहे हैं एंड यू हैव नो वन टू डिस्कस और टॉक टू अबाउट, देन प्लीज यू कैन व्हाट्सएप अस, बिकॉज वी आर टेकिंग योर क्वेश्चंस लाइव अभी व्हाट्सएप के जरिए भी। बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होगा, आपका नाम भी नहीं लिया जाएगा। 848-247-9911। Let me repeat, 848-247-9911। अभी इस शो को सुनते हुए अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज भेज सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं। अब लेट मी टेल यू द टॉपिक ऑफ द डे। Very important topic, unable to conceive. So it is very emotional topic, like रेवा जी, और इसको बहुत आप कह सकते हैं बहुत सेंसिटिव है। People do not like to talk about it. So इसके बारे में रेवा जी आज हमें बताने वाली हैं कि if someone is facing that problem, they are unable to conceive, what are the defects or what is going on wrong that Vastu can correct it or Vastu can guide you. So जी रेवा जी। बिल्कुल, ऑफकोर्स ये बहुत ही एक सेंसिटिव, बहुत ही एक पर्सनल है, लेकिन कई बार लाइफ में होता है कि हम लोग डिस्कस भी करने से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल ये है कि मेरी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा तजुर्बा है जो मैं वास्तु के साथ जुड़ी हुई हूँ, और मैंने अपने इस लाइफ के अंदर में इसी वास्तु की प्रैक्टिस के अंदर में बहुत ही, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो बाद में एक फैमिली की तरह बन जाते हैं और बहुत ही वो मेरे हार्ट के क्लोज हो जाते हैं। खास करके जहां पर मैंने ये देखा है कि दे आर अनेबल टू कंसीव। अनेबल टू कंसीव मीन्स कि आपकी मैरिज होती है, शादी होने के बाद में थोड़ी देर के बाद में आपका एक जीवन का सपना होता है कि आप भी अपनी पेरेंटहुड की लाइफ में आए, आपकी भी लाइफ एक्सटेंड हो, आपकी भी फैमिली एक्सटेंड हो। बिकॉज पेरेंटहुड इज दैट इमोशंस, एक वो फीलिंग्स है कि जो जीवन में कोई भी, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात कर रही हूँ, फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। हमारे भी पेरेंट्स हैं, उनके थ्रू हम उनकी जिंदगी में आए, आगे हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों से बच्चे, इस तरह से जिंदगी ये चलेगा। ये एक चक्र है, ये एक सर्कल है, जैसे मैंने आपसे बताया। लेकिन कई बार होता है कि क्या रीजन है, मैं ये वास्तु प्रिंसिपल्स के ऊपर मैं लिसनर्स बात करूंगी, व्यूअर्स बात करूंगी। इसमें ये नहीं है कि आपको मेडिसिन नहीं लेनी है या आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आपको ट्रीटमेंट नहीं लेना है। पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है कि आप कंसीव नहीं कर पाते। दूसरा, अगर कंसीव करते हैं तो आफ्टर 3 months में ही कोई मिसकैरेज होना, कुछ एबॉर्शन हो जाना, क्या बात है। थर्ड, कि
8 मंथ्स 9 मंथ्स तक बच्चे को आप कैरी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अचानक पता चलता है कि बच्चा हमारा डिसेबल है या कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ये सारी चीजों के ऊपर में हम बात करेंगे और वो है वास्तु। बिल्कुल ये बात सही है कि अगर आपके घर में वास्तु का डिफेक्ट होता है तो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। या वो 9 महीने जो बहुत होते हैं, बड़े हार्ड होते हैं मदर के लिए, बच्चे को कैरी करना, या कुछ अपने भी हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। क्योंकि जो वो 9 मंथ का एक जन्म दे रहे हैं आप किसी को, एक इंसान दूसरे इंसान को जन्म दे रहा है, वो जो 9 महीने होते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उस 9 मंथ्स के बाद में हर किसी की ये होती है कि मदर भी और चाइल्ड दोनों अच्छे होने चाहिए, दोनों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हेल्दी। ऐसा कहीं नहीं देखा जाता कि क्या देते कि हमें बच्चा चाहिए तो माँ नहीं चाहिए, माँ चाहिए तो बच्चा, ऐसा नहीं है। तो वी ऑलवेज पे कि दोनों ही हेल्दी हो। सबसे पहले अगर आप सोचते हैं कि आपके मैरिज में टाइम हो गया है या आप कंसीव करना चाहते हैं, यू आर नॉट एबल टू, तो वो बहुत डिपेंड करता है आपके घर की डायरेक्शंस के ऊपर। जैसे कि अगर आपका साउथ वेस्ट फेसिंग घर है, अगर डोर होगा, साउथ वेस्ट एंट्रेंस डोर होगी, तो वहां पे फैमिली को एक्सटेंड करने में, वहां पे जो आप कह सकते हैं कि कंसीव करने में जरूर प्रॉब्लम्स होती है। हम अकॉर्डिंग टू वास्तु हमेशा कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इज एयर एलिमेंट एंड इट इज रिलेटेड विद मून प्लैनेट, जो आपके इमोशंस के साथ में है। लिसनर्स, अगर आप सोचते हैं कि कहीं पे ऐसा इशू है, तो सबसे पहले तो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को इनहांस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो लव से जुड़ा हुआ है, एयर एलिमेंट है, मून प्लैनेट से है। अगर आप जिस टाइम पीरियड में आप अपने कंसीव करना चाहते हैं, पर्टिकुलर उन दिनों के अंदर में आप नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका कोई बेडरूम हो तो उसको आप जरूर यूज करिए। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम को यूज करते हैं, इट हेल्प्स टू एनहांस योर एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट के साथ में ये मून प्लैनेट की जो आपके इमोशंस के साथ में जुड़ा हुआ है, उसी से ही आप प्रॉपर कंसीव कर सकते हैं। फिर हमको साउथ वेस्ट के साथ में ये ध्यान रखना है कि आपको नॉर्थ ईस्ट में आपका मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए। कंसीव करने वालों कपल के लिए, न्यूली मैरिड कपल के लिए, नॉर्थ ईस्ट कभी भी मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में होंगे तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, साथ ही साथ में फीमेल को कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। इसके साथ ही सुनीता की कई बार मेरे को जब क्लाइंट्स मिलते हैं, ये बताते हैं कि रेवा जी, नाउ डॉक्टर दे पीपल आर टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम डॉक्टर, या आईवी की तरफ से वो जाना चाहते हैं, उसकी तरफ से वो करना चाहते हैं, क्योंकि आज की साइंस बहुत तरक्की कर गई है। जी, मैं भी कहती हूँ कि वास्तु इज ऑल्सो इन साइंस, दिस इज एन इंडियन एंशिएंट आर्किटेक्ट साइंस, क्योंकि जो पहले थ्योरीज थी, आज का प्रैक्टिकल हम अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, उसी से हम फायदा उठाते हैं। द सेम वे ओवर देयर, कि आज साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि जहां पर अगर देखते हैं कि कहीं हस्बैंड में या वाइफ में कहीं कमी है, तो लेकिन हम दूसरे ट्रीटमेंट के थ्रू भी हम कंसीव करते हैं। वहां पर क्या रीजन है? वहां पे भी अगर कहीं घर का आपका वास्तु डिफेक्ट होता है, तो वहां पे भी आपको कंसीव कर लेंगे तो 3 महीने बाद ही कहीं अबॉर्शन हो जाता है, या 3 महीने बाद ही कोई मिसकैरेज आ जाएगा, या कहीं आगे बच्चा ग्रो नहीं होगा। उसके लिए अगर आपका मास्टर बेडरूम या आप साउथ ईस्ट में सो रहे हैं, तो आपके साथ में इश्यूज आएंगे ही आएंगे, क्योंकि साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट है, वो उस चीज को खत्म करता है, बर्न करता है। और जो बच्चा एक पेट में है वो पनप रहा है, तो इसका मतलब कि उसको लाइफ चाहिए, उसकी लाइफ ग्रो होनी है, जो इसको उसको अपने माँ के रास्ते से फीड मिलता है। लेकिन अगर घर की वीनस को, घर की फीमेल को ही साउथ ईस्ट से फायर एलिमेंट की एनर्जी मिलेगी, जो कि उसको बर्न करेगी, तो उसका नेचुरली इफेक्ट बच्चे के ऊपर ही पड़ेगा। इसके साथ में नेक्स्ट आता है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके घर में सेंटर में स्टेयर्स हैं, या घर में सेंटर में किचन है और स्टेयर्स के नीचे बाथरूम है, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा इस टाइम पीरियड में 9 मंथ्स का जो टाइम पीरियड होता है, बहुत ही क्रिटिकल होता है। कई बार बच्चों की जान बचती है या माँ की नहीं बचती है, या कंसीव करके भी प्रॉब्लम है, ये सारे इश्यूज आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वास्तु वी ऑलवेज से कि कहीं पे भी अगर स्टेयर्स के नीचे बाथरूम है, या सेंटर में स्टेयर्स है या किचन है, वो क्यों इफेक्ट करती है? आप ये देखिए कि जो एक कहते हैं कि नाभि है, माँ की नाभि है,
उसी से ही बच्चे को फीड मिलता है, वही सपोर्ट के थ्रू ही बच्चा खाता है खाना। उसी तरह से घर का आपका जो सेंटर प्लेस है, जो ब्रह्म स्थान है, उसी के साथ में ही आपकी एनर्जी जुड़ी हुई है। और अगर हमारे घर का सेंटर, हमारा ब्रह्म स्थान अगर डिप्रेस्ड होगा किचन से, स्टेयर से या बाथरूम से, तो नेचुरली है वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। तो आप कैसे उससे रिलेशन पाएंगे? मैं इसके साथ ही आपको केस स्टडी जरूर अपने एक दो बताना चाहती हूँ। हमारे कैलिफोर्निया के लिए, जिनका प्राइवेसी करके नाम नहीं लेते, लेकिन इट इज ट्रू, देयर आर 2 केसेस। एक केस था कि जिन्होंने कंसीव करने से 18 ईयर से दे वर ट्राइंग, लेकिन दे वर नॉट एबल टू कंसीव। And I still remember that the lady she was American and husband was Indian. जब उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया तो मैंने उनके घर का जब वास्तु देखा तो नॉर्थ ईस्ट में भी बाथरूम था और साउथ वेस्ट में एंट्रेंस डोर था। उसकी वजह से क्या था कि वो ग्रो नहीं कर रहे थे। उसको ठीक करने के लिए सुनीता जी, साउथ वेस्ट का मैंने उनका एंट्रेंस डोर परमानेंट ही बंद कर दिया, क्लोज करा दिया। आई सेड कि आपके पास में ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ की तरफ से आपका जहां बैक यार्ड का गेट है, आप वहां से एंटर करिए, लेकिन आपको 9 months यू हैव टू फॉलो दोज प्रिंसिपल्स। बकायदा उन्होंने उन चीज को फॉलो किया। उनको हमने प्रोडक्ट्स जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उसके साथ में मैंने क्रिस्टल थेरेपी दी। उनको क्या एडवाइस किया हमने कि आपको फर्स्ट 3 months टू कंसीव अ चाइल्ड, आपको पहले 3 महीने नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम में आपको सोना है। When you conceive a child, after 3 months, आपको जो नेक्स्ट 6 months है वो आपको साउथ वेस्ट बेडरूम में आना है। नॉर्थ वेस्ट आपको एयर एलिमेंट कंसीव करने में हेल्प करेगा। उसके बाद में जो 6 months है आप उसके लिए साउथ वेस्ट में आइए। साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है, वो ग्रो करता है, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन साउथ ईस्ट में नहीं आप सोएंगे, ना ही आफ्टर 3 months आप नॉर्थ वेस्ट में सोएंगे, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट एयर एलिमेंट की वजह से 3 महीने के बाद में एबॉर्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उसी तरह से साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम होगा तो वो आपके साथ में प्रॉब्लम लेकर आएगा। कुछ ना कुछ बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी या आपके साथ में कोई ऐसे इश्यूज आ जाएंगे, ब्लड लॉस हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि आफ्टर 3 months ना तो आप नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी को यूज करिए, ना ही आप साउथ ईस्ट के बेडरूम को यूज करें। यस, अगर आप सोचते हैं कि 8 months आपके बहुत अच्छे निकल गए, तो 9th month में उस समय घर जो माँ है उसको यही कहा जाता है कि यू हैव टू स्लीप इन नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद जुपिटर प्लैनेट एंड द ब्लेसिंग्स। क्योंकि उस समय बहुत जरूरत होती है ब्लेसिंग्स की, माँ के लिए भी, बच्चे के लिए। फिर आफ्टर डिलीवरी 40 days के लिए भी वो नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम को यूज कर सकती है। यही प्रोसेस जब मैंने अपने क्लाइंट के साथ में किया, एंड इट इज ट्रू। अगर हम उनका नाम नहीं बता सकते, लेकिन आफ्टर 18 years शी वॉज ब्लेस्ड विथ बेबी बॉय, एंड गॉड ब्लेस, आज वो बच्चा 4 साल का है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे जैसे इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं उसका हमें फायदा होता है। सेम एक और केस हिस्ट्री मेरी लाइफ के अंदर में जिसको मैं अभी तक याद करती हूँ, उनके घर में जो सेंटर में स्टेयर्स के नीचे बाथरूम था और साउथ ईस्ट में उनका बेडरूम था, उसकी वजह से उनकी फैमिली एक्सटेंड नहीं हो रही थी और 3 बार उनका एबॉर्शन हो गया था। इट्स वेरी हार्ड फॉर कपल के लिए कि जिनकी लाइफ स्टार्ट होनी है और उनके नहीं है। मेरे थाउजेंड ऑफ क्लाइंट्स हैं सुनीता जी, लेकिन आज भी मैं कहती हूँ मेरे उस जैसा क्लाइंट कहीं नहीं मिलेंगे जो बहुत वेरी क्लोज टू माय हार्ट नाउ, बिकॉज they started this process with me from very first day till बच्चा पैदा होने के 1 साल तक। उन्होंने एक स्टेप को वास्तु के हिसाब से फॉलो किया, एक स्टेप। यहाँ तक कि उनका साउथ वेस्ट में छोटा सा कमरा था, उन्होंने पूरे 6 months साउथ वेस्ट के छोटे से कमरे में उन्होंने हस्बैंड वाइफ ने काटे। नीचे जो स्टेयर्स के नीचे बाथरूम था, उस बाथरूम को उन्होंने परमानेंट बंद कर दिया, जबकि रेक्टिफाई भी किया था, फिर भी नहीं उन्होंने किया। इवन कि मेडिसिन, डॉक्टर के पास कब चेकअप के लिए जाना है, किस दिन क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या मेडिसिन का होना चाहिए, हर चीज को उन्होंने फॉलो करने की कोशिश की। नाउ दे आर वेरी हैप्पी। एक बेटा हुआ, उसके बाद में उनका दोबारा भी एक और बेटा हुआ। तो ये कहना चाहती हूँ मैं अपने लिसनर व्यूअर्स कि अगर लाइफ में कहीं आप ऐसे स्ट्रेस से निकल रहे हैं तो आपको कहीं उदास होने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत साइंस तरक्की कर गई है,
पर जहां अगर वास्तु का डिफेक्ट है, क्योंकि ये जो वॉल्स हैं, इन्हीं की एनर्जी हमारी लाइफ के साथ जुड़ी है. The way our body is made of 5 elements of nature, the same way universe is also based on 5 elements of nature. Along with that, our dwelling is also based on 5 elements of nature. जब ये सब चीजें नेचर के इन 5 एलिमेंट्स को जुड़े हैं, तो आपको क्या करना है? इसको बैलेंस करना है. जैसे ही आप इन एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे, इस एलिमेंट से जुड़ी एनर्जी को आप फील करेंगे, उसको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, तो कहीं पे आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि हमारे आगे कहीं क्वेश्चन मार्क है कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे, या आगे कर रहे हैं तो फैमिली नहीं एक्सटेंड कर पा रहे, या हमारे यहाँ पे बच्चों की कोई ऐसी कमी है. तो अगर आप सोचें तो आप उसके लिए यू आर ऑलवेज वेलकम. यू कैन गिव मी अ कॉल, जिसको अगर वास्तु को फॉलो करके, इन्हीं डायरेक्शंस को फॉलो करके हम किस तरह अपनी लाइफ में ब्लेस हो सकते हैं. जी बिल्कुल. तो मैं अभी जो हमारे साथ जुड़े होंगे लिसनर्स या व्यूअर्स, उन्हें मैं एक बार बता दूं, आज का हमारा टॉपिक है, इफ यू are unable to conceive, or if you know someone who is unable to conceive, then how it can be more, the Vastu can give you guidance and help, and how it can change your life. That's the topic. And if you'd like to connect with Reva ji and take further guidance or consultation, then please contact her at 510-868-3338. You can also visit our website worldofdivinevastu.com. यहाँ पर आपको रेवा जी की सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, और उनका फोन नंबर, उनका ईमेल एड्रेस वगैरह भी मिल जाएगा. मैं हमारे लिसनर्स व्यूअर्स को एक और इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहूंगी यहाँ रेवा जी, कि अगले हफ्ते से on the same day, Thursday, on the auspicious day of Thursday itself, रेवा जी का शो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं. But instead of this time, the current time, we are moving to 4 p.m. Central time, 4 p.m. Pacific time and 7 p.m. Eastern time. So let me correct it one more time. 7 p.m. Eastern time and 4 p.m. Pacific time. इस टाइम पर आप रेवा जी का शो हर थर्सडे को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, starting from coming Thursday itself. Let me also mention that 5:40 a.m. South Asian Radio Network जो है रेडियो जिंदगी का, न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी एंड कनेक्टिकट में, और इसके अलावा 13:10 a.m. पार्सिपेनी एंड सेंट्रल नॉर्थ न्यू जर्सी, एंड 96.7 FM एडिसन एंड सेंट्रल साउथ जर्सी पर भी आप ये शो लाइव सुन सकते हैं. अगर आप फेसबुक पर नहीं देखें तो आप इसे लाइव सुन भी सकते हैं. तो याद रखिएगा लिसनर्स, रेवा जी आपके साथ हर सप्ताह की तरह जुड़ी रहेंगी, लेकिन वी हैव द न्यू टाइम. सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस न्यू टाइम. फेसबुक लाइव पे या रेडियो जिंदगी पर आप सुनना चाहते हैं तो 7 p.m. ईस्टर्न टाइम एंड 4 p.m. पैसिफिक टाइम. जी रेवा जी, बैक टू अवर टॉपिक. जी हाँ, तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब इसको हम रेक्टिफिकेशंस करते हैं, हमारी यही स्पेशलिटी है सुनीता, कि हम कहीं पे रेनोवेशन या रिमॉडलिंग में नहीं करते. पर्टिकुलर डायरेक्शंस की हेल्प से ही हम इसकी रेमेडीज देते हैं, और इसके साथ में जो बहुत ही ज्यादा एनर्जी को इनहेंस करना होता है, दैट इज अ क्रिस्टल थेरेपी ऑल्सो, कि कौन से क्रिस्टल हैं जिस एलिमेंट को इनहेंस करेंगे ताकि बच्चे के लिए भी और माँ के लिए, दोनों के लिए बेनिफिट हो. सो दीज आर वेरी सिंपल. मैं यही कहूंगी कि आप इस प्रॉब्लम को, इस स्ट्रेस को बहुत इजी वे से, बहुत पॉजिटिव वे से आप इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फॉलो करना होगा वास्तु प्रिंसिपल्स को. उन डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करिए और अपनी लाइफ की इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं. और अब चलते हैं टिप की तरफ. सो टिप ऑफ द वीक है आज हमारी, हाउ टू अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज एट योर वर्क प्लेस. बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल जरूरत होता है, क्योंकि काम शुरू हो चुका है. चाहे हम लोग घर से काम कर रहे हैं, चाहे अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो नेचुरली अपॉर्चुनिटीज हर किसी को चाहिए कि आगे लाइफ में बढ़ने के लिए. उसके लिए मैं आपको 2 रेमेडीज देने के लिए जा रही हूँ. 2 टिप्स हैं, खासकर फीमेल्स के लिए है, लेडीज के लिए मैं देना चाहती हूँ. अगर आप सोचते हैं कि आपको कहीं पे कुछ ब्लॉक लग रहा है आपका करियर में, या ग्रो नहीं कर रहे, या अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं लेकिन अवेल नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जहां भी घर का आपका लिविंग रूम है, उसकी नॉर्थ डायरेक्शन की जो विंडोज अगर विंडोज है, तो वहां पर आप छोटी छोटी हनी की बॉटल्स रख दीजिए, क्योंकि हनी जो है वो एक मैग्नेटिक एनर्जी को क्रिएट करता है, वो अट्रैक्शन को लेता है, ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें.
एंड इफ यू थिंक दैट देयर इज नो विंडो इन नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ योर लिविंग रूम, वहां पर आप क्या करेंगे, पर्पल कलर का मेटल का वास ले लीजिए। पर्पल कलर का मेटल का वास लेंगे तो उसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स लगा दीजिए, और अगर व्हाइट कलर का मेटल का वास लेंगे तो उसमें पर्पल कलर का फ्लावर्स लगाइए। ये फ्लावर्स आप रियल भी लगा सकते हैं और या आर्टिफिशियल सिल्कन लगाइए, बट डोंट कीप प्लास्टिक फ्लावर्स। प्लास्टिक फ्लावर्स को आप मत रखिए, आप सिल्कन क्लॉथ फ्लावर्स भी रख सकते हैं। दिस इज फॉर द लेडीज। और जेंट्स के लिए मैं बताना चाहती हूँ अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए, उनको रेड कलर का या ऑरेंज कलर का वुडन और क्ले का एलिफेंट का पेयर अपने घर के साउथ डायरेक्शन में रखें। जब आप साउथ डायरेक्शन में एलिफेंट का पेयर रखेंगे जिसका ट्रंक ऊपर की तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं, तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही नॉर्थ जाएगा। नॉर्थ में आप क्या रखेंगे, आप मेटल का गोल्डन शेर का जैसे होता है लॉयन का पेयर रखेंगे। तो लॉयन का पेयर आएगा नॉर्थ की तरफ, एलिफेंट जो वुडन है, क्ले है, वो आएगा आपका अर्थ एलिमेंट ऑरेंज कलर का। इट हैज टू बी इन साउथ डायरेक्शन, बट दे बोथ हैव टू फेस ईच अदर। लॉयन भी फेस करेगा, एलिफेंट एक दूसरे को फेस करेंगे। इससे आपको दो बेनिफिट्स हैं, एक तो ये अपॉर्चुनिटीज को अपनी अच्छी से अच्छी अवेल करेंगे, और दूसरा आपका अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में, बॉस के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा। कई बार हो जाता है कि कहीं बॉस के साथ में ईगोइस्ट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको, उस एनर्जी को ये बैलेंस करेगा। अगर आप सोचते हैं कि आप घर पे नहीं रख सकते, तो ये आप अपने ऑफिस, अपने रूम में भी रख सकते हैं। जहां पे भी आपका ऑफिस में, आपका रूम है, आप वहां पे भी रख सकते हैं। सो दिस बोथ टिप्स व्हिच आई एम शेयरिंग विथ यू गाइस, ये आपकी अपॉर्चुनिटीज को, अपने वर्क प्लेस पे अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए। जी बिल्कुल। लिसनर्स, व्यूअर्स, आप जानते हैं रेवा जी जब भी आती हैं एक बहुत ही उम्दा टॉपिक लेकर आती हैं, साथ में टिप ऑफ द वीक भी लेकर आती हैं। मैं बता दूं आपको कि ऐसा नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल, सबका अपना अपना केस होता है, उसकी केस स्टडी की जाती है और वहीं पर एक्सपर्टीज काम आती है जो रेवा जी रखती हैं। अबाउट 37+ ईयर्स की एक्सपर्टीज है इन द फील्ड ऑफ वास्तु। लिसनर्स, तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। रेवा जी की गाइडेंस लेना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, इनका नंबर है 510-868-3338, 510-868-3338, and you could also visit her website. The website is worldofdivinevastu.com. रेवा जी, वैलेंटाइंस डे वीकेंड है ये, तो कुछ जी बिल्कुल, वैलेंटाइंस के लिए तो पहले हम सभी को वैलेंटाइंस के लिए बहुत बहुत मुबारक देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि वैलेंटाइंस जो डे आ रहा है ये सिर्फ ये नहीं कि कपल्स के लिए है, दिस इज फॉर माँ बेटे का भी होता है, फादर का, डॉटर का भी होता है, फ्रेंड्स का भी होता है, सबके लिए एनीवन यू लव इन योर लाइफ बेसिकली। आप किसी को भी करें, आप भगवान के लिए भी वैलेंटाइंस कर सकते हैं, सबके लिए कर सकते हैं। आज का वैलेंटाइन के लिए टिप मैं देना चाहूंगी कि अगर वैलेंटाइन जॉब करने जा रहे हैं, इससे जितना भी ज्यादा अवॉइड करिए, ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिए, इनहेंस करिए आप रेड कलर को, ऑरेंज कलर को, गोल्ड कलर को। अपनी बॉडी में जितना इनहेंस करेंगे, इसकी आपको बहुत ही ज्यादा इसकी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और टिप जो शेयर करूंगी खास उनके लिए है, दोज आर वेटिंग फॉर देयर वैलेंटाइन, या वो अपना प्रपोज करना चाहते हैं या उन्हें कोई मिल नहीं रहा, तो उन सब के लिए क्या है कि आपको 14 ही नंबर 1 और 4, 14 ही आपको बैलून्स लेने हैं। बैलून्स अगर आप ऑरेंज कलर, रेड कलर, येलो कलर के सारे लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप तीनों ही कलर मिक्स ले सकते हैं। इन्हीं बैलून्स के ऊपर में आपको अपने ब्लू पेन के साथ में और रेड पेन के साथ में आपको विश लिखनी है। विश मीन्स कि अगर आपके वैलेंटाइन है, आप उनका नाम लिख सकते हैं। अगर आप किसी के इंतजार में है, किसी को चाह रहे हैं, उनका नाम लिख सकते हैं, या अपनी विश भी कर सकते हैं। That you have to write down, और आपको ये बैलून आसमान में खुले छोड़ने हैं, because love is in air. Always remember कि और वो समय आ रहा है। तो जैसे जैसे बैलून जितनी हाइट्स में जाएंगे, जितना ऊपर ग्रो करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने वैलेंटाइन के पास में पहुंचेंगे, आपको अपना प्यार मिलेगा। और हम भी यही दुआ करते हैं कि आपकी जिंदगी में आपके वैलेंटाइन हमेशा आपके साथ रहें, क्योंकि प्यार वो है कि जो आपके प्यार को आपको अपने रंग में रंग ले, या आपके रंग में वो रंग जाए। कहने वाले ने बहुत कहा है अच्छा, कि बुरे के अच्छे के साथ तो दुनिया निभाती है, मजा है कोई बुरे के साथ रह के दिखाए। तो इसीलिए आप ये देखिए कि कहीं गिला शिकवा है तो भूल जाइए,
और वो एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। भूल के अपनी जिंदगी को बहुत ही प्यार के साथ शुरू कीजिए, क्योंकि प्रेम ही आपका जीवन है। Ji. So we wish and pray that every day of your life is as sweet and lovely as the Valentine's Day. So रेवा जी के साथ मैं सुनीता राज अब आपसे लेते हैं इजाजत. Listeners, don't forget next Thursday 7 p.m. Eastern Time and 4 p.m. Pacific Time. We'll be right back. जय माता दी. जय माता दी सुनीता. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an Utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.